स्टार्ट करूं? नहीं, अभी कर दीजिए। ओके सर। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। और ऐसे ही तिनके को उठाते हुए हमारी वैद्य मित्रम की टीम आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुई है। सो आप सभी को हमारा नमस्कार, हमारा प्रेम पूर्वक प्रणाम। To all our respected teachers and my lovely friends. On this side, you are listening to Muskan Singh Tomar, your host of this hour, to welcome you all. Today, we all have gathered here for an all India level contest called Charak Genius Challenge. It is a paragraph writing and reciting contest presented by none other than our own platform of Vedamitram Ayur e-learning. First of all, I would like to welcome our honorable chief guest, Dr. Anjana Dwivedi. She is a reader, State Ayurved College and Hospital, Lucknow, UP. Ma'am, you are truly an inspiration for us. Thank you for being here with us. Our distinguished judges, Dr. Prafulla, Associate Professor, Department of Agat Tantra, Rani Dhulaiya Smriti Ayurved, PG College and Hospital, Bhopal. Ved Pankaj Kumar Singh, Assistant Professor of Department of Bal Rog, Institution of Ayush Medical Science, Mohanlal Ganj, Lucknow. Ved Ankesh Kumar Mishra, Department of Dravya Guna, Dayanand Ayurved College and Hospital, Sivan. A warmest welcome to all of you present over here. Our coordinators of this program, without whom we haven't been able to present this program at all to you. Dr. APS Chauhan, Organizing President GAC Indore, and Dr. Babita Sharma, Organizing Secretary GAC Bhopal. And lastly, but not the least, our lovely student coordinators, Ms. Anjani Mishra, Veena Vadhani College, Bhopal, and Mr. Shubham Bharadwaj, GAC Bhopal. My warmest welcome to everybody present on the panel. Thank you for being here with us. Now, I would like to continue our program details. First of all, I would like to tell judges that you have to judge the participant on two criteria. First is how well they have written the paragraph, and second is the reciting skill, how well they are presenting the paragraph. You have to give marks out of 10. On both the criteria, you have to give 5 marks out of 5 marks to them. And judges, we are having this contest in 2 slots. First slot has already been performed on 5th September. So its result will be declared later at the end of this program. And today's results will be declared on a next program of Vedamitram e-learning. Next, I would like to tell that what this challenge is about. Every participant have to pick a shlok from Charak Samhita. Then he or she has to tell the reference from where he or she might have taken the shlok. And then in her own point of view, she or he has to keep the point of view what he want to deliver, why he liked the shlok so much that he chosen it. Some ground rules for the students. Presentation should not exceed 3 minutes, otherwise marks will be deducted, or you will be stopped before end of a presentation. You don't have to introduce yourself, just greet and start your presentation. And I will call out your name as well as the next participant name. So be ready according to the participant list provided to you earlier. If your connectivity is not proper, we will move forward to the next student and you will be given chance later on at the end of the program. So now I would like to take permission from Dr. Prafulla, if she is there with us. Now, I would like to take permission from Dr. Prafulla ma'am on behalf of all the other judges to start the program. Ma'am, can we start the program?
आई थिंक कनेक्टिविटी नहीं है मैडम की। आप स्टार्ट कर सकती हैं प्लीज। Okay, ma'am. Let's start a program with a great information. For more such interesting feed and challenges, do like and subscribe our channel of Vedamitram Ayur e-learning platform. Don't forget, like and subscribe our channel. So, I would like to start the program. Our first contestant is Swapnil Khandagle from Sri Gurudev Ayurveda College, Mozari District, Amravati. Swapnil, are you there with us? Swapnil, if you're there with us, unmute yourself and start the program. I think he is not connected with us, so I would like to move on to the next participant. मयूरी। मुस्कान, एक अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ। बाय चांस आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो यदि और आपका नाम यहाँ बुलाया जाता है तो प्लीज चैट में आप लिखिए, हम यहाँ से होस्ट आपको अनम्यूट कर देगा। तो आप चैट में भी अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, है ना? ओके, कंटिन्यू प्लीज। I would like to call upon our next participant, Mayuri Kedare from Government Ayurvedic College, Nanded. Hello, ma'am. Hello. Unmute yourself and as well as your video also, Mayuri. Okay. Yes, you are visible as well as audible. Continue. Good afternoon, ma'am and sir, everyone present there. चरक संहिता चिकित्सा जगत का प्रामाणिक प्रौढ़ और महान सैद्धांतिक ग्रंथ है। आयुर्वेद प्रयोजन द्वारा स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और इसीलिए हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसी पंचकर्म में से एक बस्ती सर्वगुणकारी, यह सूत्र में आज आपको अध्याय नंबर 11 फल मात्रा सिद्धि अध्याय से आपको बताने वाली हूँ। सूत्र यह है कि सर्वकर्म गुणकृत गुरुणोक्तो बस्तिम ऊर्ध्वमथ नेति नाभिता नाभ्योदो गुदमथ सशरीरता सर्वता कथम पोहति दोषानम तद गुरुर बृहर्विधि शरीरम तत्रयन्ते अनिला संग विघातात केवलम येव दोष सहितो वा स हि वायु प्रकोपम उपयति तम पवनम सपित्तम कफलम विटकम शुद्धि करो अनुलोमयति बस्ति सर्व शरीरगश्च गद संगत प्रशस्तम प्रशवंती उपयति। इस उपरोक्त सूत्र से हमें यह पता चलता है कि सर्वकर्म गुणकृत मतलब बस्ती को पंचकर्म में से यथोचित जो लाभ मिलते हमें वह सभी लाभ हमें बस्ती देती है, ऐसा कहा जाता है। पर इस सूत्र में से हम ये भी समझ सकते हैं कि बस्ती द्रव्य तो नाभि के ऊपर न जाते हुए भी और वो गुद से तथा वो गुद से वैसे ही बाहर जाते हुए भी बस्ती हमारी हर पीड़ा कैसे दूर करती है। यह बात हमें समझने के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि वात अपने प्रकोपों के कारणों से जब मुक्त रहता है तब वो अपने सभी शरीर क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। पर जब भी वात कफ और पित्त के साथ मिलकर अपने स्थानों में मतलब पक्वाशय में अनेकोविध लक्षण दिखाता है तब वो प्रकोपित हो गया ऐसा हम समझ लेते हैं। और उस वक्त जो शोधन कार्य बस्ती द्वारा किया जाता है उससे प्रकोपित वात कफ और पित्त के साथ बाहर जाकर अनुलोमन करता है और बस्ती अनुलोमन करता है और इसी वजह से वात अनुलोमित होने से बस्ती के द्वारा अनुलोमित होने से दोष धातु और मल सभी अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त करते हैं और वात के अनुलोम प्रकोपित हो जाने से और जो भी कई उपद्रव निर्माण होते हैं वो भी बस्ती द्वारा अनुलोमित किए जाते हैं और उन सभी का प्रशमन हो जाता है। बस्ती शीघ्रता और सुखपूर्वक तरीके से कोष्ठ का शोधन करती है और अपतर्पण औषधि से वो शीघ्र अपतर्पण कर देती है। बस्ती को विरेचन से भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि विरेचन देने से जो भी अरुचि और उदरशु निर्माण होते हैं वो सभी उपद्रव हमें बस्ती में नहीं पाए जाते। और जो बस्ती हम बाल्य और वृद्धों को विरेचन जो हम बाल्य और वृद्धों को नहीं दे सकते वो वही विरेचन को छोड़कर वही हम बस्ती भी उन्हें दे सकते हैं। बस्ती से उनको बल वर्ण हर्ष और मृदुता स्निग्धता प्राप्त होती है, इसीलिए बस्ती को सर्व गुणकारी कहा जाता है। थैंक यू मैम। Thank you, Mayuri, for such a great information about Basti and how it is useful in our Ayurveda.
Now, I would like to move upon to the next participant, Miss Pallavi Shukla from Patanjali Ayurvedic College, Haridwar. हेलो मुस्कान, एक बार जजेस को फिर से अपन बता देते हैं कि आप ये नाम या सीरियल नंबर जो भी आप चाहें नोट डाउन करते जाएं, और मार्क्स 5 और 5 दो कैटेगरी है हमारे पास। पहली कैटेगरी है कि राइटिंग स्किल, उस स्टूडेंट ने, उस पार्टिसिपेंट ने उस श्लोक को अपने जब एक्सप्लेनेशन वो कर रहा है कि क्यों उसे वो श्लोक पसंद है, तो किस तरीके से उसने अपनी अप्रोच को रखा है, तो उसकी राइटिंग स्किल यानी लेखन, उसकी क्षमता को हम जज करेंगे, 5 नंबर होंगे उसमें। और दूसरा, आज वो कैसे उस अपनी पैराग्राफ जो उन्होंने लिखा है पहले से ही प्रिपेयर्ड है, उसको वो आज प्रेजेंट कैसा कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल उनका कैसा है। तो ऐसे 5 मार्क्स दो कैटेगरी में है, और हम टोटल 10 आउट ऑफ 10 उन्हें अपने मार्क्स Judge देंगे करेंगे। जैसा आप चाहते हैं, जज करेंगे, राइट। और आप चाहें तो इनके सीरियल नंबर से भी आप रिजल्ट बना सकते हैं, नाम और सीरियल नंबर मेंशन रखें बस। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू। Thank you, ma'am. Up next, our next participant is Pallavi Shukla from Patanjali Ayurvedic College, Haridwar. Pallavi, Ma'am, I'm audible. yes, you're audible, but your video is not on, not switched on. Ma'am, Switch on your video, Pallavi. ma'am, already switched on. Ma'am, am I visible? No, you are not visible. Pallavi, continue your presentation like this, or we will move on to you later on. Okay, ma'am. Ma'am, You are visible now. Continue. okay, ma'am. Good afternoon, everyone, to all the respective teachers who are here. So, जो वर्डन में चाहिए चरक विमास्थान अदय अध्याय रसान श्लोक नंबर 24 है। पल्लवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? थोड़ा सा लाउड बोलिए अपना, आप जिस भी डिवाइस से है वॉल्यूम लाउड कीजिए। आपकी आवाज धीमी है, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। मैम, नाउ ओके? हाँ, ठीक है, थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। ओके मैम। यस। श्लोक जिसका मैं वर्णन करने जा रही हूँ वह चरक विमान स्थान प्रथम अध्याय 10 विमान से श्लोक नंबर 24 है, जिसमें चरक द्वारा बड़े संक्षिप्त शब्दों में आयुर्वेदी विधान का वर्णन किया गया है। श्लोक प्रकार है: उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्ण वीर्य विरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सब उपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम अज्वल्पन अहसन तन्मनाभंजित आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक। इसका अर्थ सीधा सा है, वो जो हम ग्रहण करते हैं वह गर्म होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, न मात्रावत युक्त होना चाहिए, मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए। प्रिय स्थान पर बैठकर सभी सामग्रियों से युक्त होना चाहिए, ना अधिक जल्दी ना अधिक धीरे, ना हंसकर ना बोलकर हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। मन लगाकर अपनी रुचि के अनुसार शरीर की अनुकूलता अपनी पाचक अग्नि को ध्यान में रखकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह श्लोक मुझे इसलिए पसंद कि पथ्यता और अपथ्यता आहार की प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अनुसार होती है। आजकल हम न्यूट्रियल डाइट के बारे में काफी कहते हैं, पर भोजन के सेवन की विधियां है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और सबसे बड़ी बात तब आती है जब न्यूट्रिशनल डाइट को लेता हुआ व्यक्ति भी मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, उसमें डेफिशिएंसीज हो रही है। 40 to 45 एज में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती जा रही है। तो मुझे इसका कहीं ना कहीं एक प्राइमरी कॉज आहार विधि विधान को फॉलो ना करना लगता है कि 1 बजे टाइम फिक्स है, तो चाहे उसको भूख लग रही है नहीं लग रही है, पर वो भोजन कर रहा है, टीवी देखते देखते भोजन कर रहा है। वर्किंग लोड प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि एक हाथ से काम करता रहा है, भोजन साथ करता जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर न्यूट्रिशनल डाइट द्वारा इतनी खूबसूरती से जो आहार विधि विधान को वर्णन किया है इसका भी ध्यान रखे, तो हम उस आहार तत्व को सही तरीके से उसके जो तत्व है वो हमारे शरीर को पुष्ट कर पाएंगे, पूर्ण तरीके से पुष्ट कर पाएंगे, और हम पूर्ण तरीके से अपने आप को आगे होने वाली व्याधियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो थैंक यू मैम। Thank you, Pallavi, for sharing this information with us. Truly,
जैसा कहा जाता है कि आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, पर ये लोग बाग भूल जाते हैं कि वो अन्न को जिस प्रकार से लेना है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए. So thank you for sharing that. Charak has written all that information. Now we will move on to the next participant. She is Kiran B. Raj from Ashtangam Ayurved Vidyapeetham College. Kiran? Hello, am I audible? Yes, you're audible as well as visible. Continue your... Okay, namaste everyone. The sloka I would like to quote here is Tasya moolam adharmaha tan moolam va asat karmaha purvakrit karmaha tayor yoni prajnavaradaha. This sloka is mentioned in Charaka Vimanasthan 3rd chapter Janapatudhamsaniyam. As you know, this sloka is very relevant in today's current scenario because we are facing a Janapatudhamsa, that is COVID-19. Charaka explains that the main vitiating cause for Janapatudhamsa is adharmaha. What is adharma? Means we are doing unrighteous things. According to acharyas, the purusharthas are four: dharma, artha, kama, and moksha. A purusha who does this in the right manner gets sukhayu, or else if he does dharma in a wrong way, that is adharma, he gets dukhayu. That means his lifespan has been reduced. Likewise, if a Janapata does adharma, it causes Janapatudhamsam, like we are facing now the COVID-19. Now, let me explain about the Janapatudhamsa. That is how a adharma causes Janapatudhamsa. That is, if a ruler of the country or if the supreme power of the country or a region does sins or not right things, the people also follow that and does not do their duties and does sins. Likewise, every people in that area does so, and that area becomes in that area the goodness becomes disappeared, and the God deserts these people, and the climate change occurs in that area, leading to Janapatudhamsa, vitiating factors leading to a Janapatudhamsa. Thank you. Thank you, Kiran, for telling us that we human are only the source of all these pandemics. So we should be really thankful, and we should all follow dharma, and we should do our duty to the society. So thank you for that. We will move forward to our next participant, who is Vishakha Sanjay Ahar from Government Ayurved College, Osmanabad. Vishakha Sanjay Ahar. Vishakha, are you there with us? Vishakha? She might be not connected with us, so later on we will move on to her. I would like to call our next contestant, who is Kapila Chaurasia. Kapila Chaurasia from National Institute of Ayurveda, Jaipur. Kapila, are you there? Yes, ma'am. Yes, start. Turn on your all. Video. Yes, you are visible. Continue. Good evening all. My shlok from Charak Sutristan, 16th chapter, Chikitsa Prabhakti Adhyay, shlok number 27. Jayante hetu veshamya vishmade dhatva samay samastesham स्वभाव परम सदा प्रवृत्ति हेतु भावानाम न निरोधस्य कारणम. आप चरक कहते हैं कि जिन कारणों से हेतु शारीरिक धातुओं में विषमता उत्पन्न होती है, उन कारणों में यदि समता उत्पन्न हो जाती है तो शारीरिक धातुओं में भी समता उत्पन्न हो जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं. आचार्य चरक आगे कहते हैं कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में कारण तो होता है, लेकिन उसके प्रवृत्ति में तो कारण होता है, लेकिन उसके निरोध अर्थात नाश में कोई कारण नहीं होता. उसका स्वभाव से ही उपरम हो जाता है. मुझे ये श्लोक इसलिए पसंद है क्योंकि यह श्लोक हम चिकित्सकों को अहंकार भाव से मुक्त होकर के निष्काम भाव से चिकित्सा करने की प्रेरणा देता है. क्योंकि शारीरिक जो धातुएं निदान सेवन से विषम हो चुकी हैं, उन धातुएं कभी सम नहीं हो सकती. वो स्वभाव से ही उनका नाश हो जाता है.
परंतु हम चिकित्सक अपनी औषध और निदान परिवर्जन की जो चिकित्सा करते हैं उससे सिर्फ हम जो नई बन रही धातुएं हैं उनको पोषण करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो नई बन रही धातुएं हैं उनको अच्छे से बनाएं ताकि जो विषम धातुएं जो नाश को प्राप्त हो जाती हैं तो उसके बाद जब उनकी जगह नई धातुएं ले तो वो उन्नत हो, अच्छी हो, पुष्ट हो, जो स्वस्थ कारक हो, वो देह का धारण करने वाली हो। इसलिए हमें सिर्फ यह सोचना चाहिए कि हम कभी भी काल को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हम काल को रिवर्स तो नहीं कर सकते लेकिन हम नई बन रही धातुओं को जरूर उनको अच्छे से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Kapila, for showing us a side that how a doctor should be. Thank you so much. Up next, we'll move on to our next participant, who is Nivedita Gupta from Gurukul Kangri Ayurved College, Haridwar. Nivedita Gupta. Hello. Nivedita. Okay, we can hear you. Turn on your video also, Nivedita. It's on. Okay, you are visible now. Continue. Okay. Good afternoon, everyone. My shlok is Mansam Pratibhasijyam Trivaksya Anvekshanam Tadvit Seva Vigyanam Atmadinanam Cha Sarvasham. अर्थात this shlok belongs to the chapter Charak Suthan 11, Tishna Eshananam, shlok number 47. As we are aware that doctor follows the three factors, dharma, earth and calm, it's important for doctor to, during the treating the mental illness patient, to be well aware of his surrounding, environment from which he comes from, because this information gaining from is important, because mental illness patient from the lack of self-esteem, he is not able to tell his much aware, he is not able to tell the much problem he is having. Maybe he is suffering from the anger issue, stress, failure, fear. So it is important for the doctor to gain much knowledge. In mental illness patient, he mostly suffers from the, he himself withdraw from the society, like social drawing, because lack of the confidence. It is seen that as its strokes can be compared to the modern in very easy way. In mental illness patient, the parietal lobe of the brain is affected, which is responsible for the flow of the information. So doctor tries to change the environment from it belongs, like changing the environment, allow him or tell them to do some meditation, pranayam and asanas. In Ayurveda, it is well said to do them, given them Medrasayan or given them Tikshu Vaman Karm, and we usually says them to go for Shilodhara in order to have the relief of sleep. In this, in asana, it is said that there is a strap living factor which helps the brain to get a flow of information very well. I like this shlok because in the today modern generation, it is seen that we have a habit of hiding our feelings and giving them, and this habit of releasing our feelings and hiding is a very big thing from them in having that they are suffering from the mental illness. So it's a great, I want to help them, and also allow me, and also I feel great to relieve our feelings. So thank you. Thank you, Nivedita. आज की generation के लिए mental illness is a very bigger issue. So thank you for throwing some light on it. Up next, we'll move on to Miss Sakshi Lalwani from Pandit Khushilal Sharma GAC and Institute, Bhopal. Miss Sakshi Lalwani. Am I audible and visible? Yes, you are. Continue. Okay. Good evening to all of you respected teachers and judges. My shlok is Sam mans pramanastu sam sahanano naraha dradi indriya vikaranam na balen abhibhuyate shut pipasa atak sah sheet vyayam sansah sampakta samjarah sammans chayomatah. From Charak Sutra Sthan 21 अष्टोनिधि अध्याय श्लोक नंबर 18 and 19. तो ये स्वस्थ पुरुष की परिभाषा है। स्व अर्थात कि स्वतः अपनी दोष आदि
जो दो शादी की प्राकृतिक अवस्था में रहना और अविकृत अवस्था में रहना, और स्थ मतलब कि उसकी स्थिति। तो हमारे दोषों की स्थिति अगर प्राकृतिक अवस्था में है तो वो स्वस्थ पुरुष कहलाता है। सम मांस का अर्थात मतलब होता है प्रपोर्शनेट मस्कुलेचर, अर्थात कि जो व्यक्ति ना अधिक कृश हो, ना अधिक स्थूल हो, और वो अपनी सभी प्रकार की चेष्टाएं ठीक प्रकार से भलीपूर्वक कर सके। सम मांस के बाद समसहनन का अर्थात होता है कि जिन व्यक्तियों के अंग प्रत्यंग जो है अंग प्रत्यंगों की बनावट सम प्रकार से हो और सभी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं वो अपनी ठीक प्रकार से कर सकता हो। दृढ़ी इंद्रिय विकाराणाम न बलेन अभिभूयते, अर्थात उसकी जो अभ्यंतर और बाह्य जो इंद्रियां हैं वो सम हो, अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हो, और उसका इंद्रियों का अपने आत्मा, मन और विषयों से सन्निकर्ष ठीक प्रकार से होता हो, तो वो अपनी सभी चेष्टाएं ठीक प्रकार से कर सकेगा। फिर वो ठीक प्रकार सही समय पर जागता हो, सही समय पर सोता हो, तभी हम मानेंगे कि वह उसकी इंद्रिया स्वस्थ है और वो तभी किसी रोगों से ग्रस्त नहीं होगा। उसके बाद शुद्ध पिपासा आतप, अर्थात तो सभी प्रकार के क्लेश, सभी भूख, अपनी प्यास और आतप मतलब की धूप को सहन कर सके। शीत व्यायाम संसह, अर्थात वो अधिक शीत को, अधिक व्यायाम को, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उन सबको सहन करने में समर्थ हो। संपक्ता, अर्थात जिसकी जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं, सप्त धात्वा अग्नियां, पंच महाभूत अग्नि और जठराग्नि, वो ठीक प्रकार से हो, अर्थात he should have the ability to digest and assimilate the food properly. Then some मांस चयोमता, अर्थात उसका मांस का उपचय भली प्रकार से होता हो। यदि वह व्यक्ति, ये मैंने श्लोक इसलिए चूज किया क्योंकि यदि वह व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वह अपने सभी प्रकार के कार्य को ठीक प्रकार से कर पाएगा और उसको बल, वर्ण और दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। और आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, तो इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि जो स्वस्थ रहे, इन सब पॉइंट से वो जान पाएगा कि स्वस्थ व्यक्ति कैसा रहेगा और फिर वो चेष्टाएं करेगा स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए हमें स्वस्थ रहना चाहिए, ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग स्वस्थ पुरुष की परिभाषा है। थैंक यू। Thank you, Sakshi, for telling us that how important balance is important to maintain in a whole environment. Balance, समता ही संसार का आधार है. Thank you for telling us that. Up next, I would like to move on to Sharan Vaman Rao Kathole from SMT KC Ajmer Ayurved College, Dhule, Maharashtra. Sharan? Am I audible and visible, ma'am? Yes, you are both. Continue with your presentation. Okay, ma'am. Hello, good afternoon, everyone. आज मैं आपको आम उत्पत्ति के कारणों का श्लोक बता रहा हूँ। न च खलु केवलम अति मात्रम एवं आहार राशि प्रदोषक्रम इच्छन्ति अपितु खलु गुरुवृक्षम शीतम शुष्कम दुष्टम विष्टम भी विदाई असुचि विरुद्धानाम अकाले च अन्नपानम। यह श्लोक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसमें हम सोचते हैं कि आम उत्पत्ति का कारण अति गुरु या अति मात्रा में सेवन किया हुआ आहार होगा, लेकिन और भी उसके बहुत सारे कारण है, जैसे कि अपितु गुरु अन्न, देर में पचने वाला आहार, जैसे मैदा रहता है, फाइबर रहते हैं, वेफर्स हम खाते हैं, उसकी वजह से देर में पचने से अग्नि मंद हो जाता है और उसका आम तैयार हो जाता है। उसी तरह रुक्ष अन्न, हम बताते हैं कि घृतहीनम च अन्नम, मतलब स्नेह रहित अन्न लिया तो वो अग्नि को बुझा देगा और वो हमको आम की उत्पत्ति बन जाएगी। जिस तरह नींबू हो, चना हो, इसके लिए रुक्ष होता है। जैसे और भी चरकाचार्य ने बताया है कि शीत मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और हम अलग अलग तरह के ठंडे पदार्थ खाते हैं, उसी की वजह से आम की उत्पत्ति बढ़ जाती है। और शुष्क पदार्थ जैसे कि कॉर्न, पिज्जा, पापड़, खार, अचार, इसके वजह से शुष्कता आती है और उसी की वजह से आम की उत्पत्ति बढ़ जाती है। दुष्ट आहार, कब्जकारक, मतलब जो स्तोर्दो विबंध कहते हैं हम, उसी की वजह से अग्नि का संदूषण होता है और आम की उत्पत्ति बनती है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें गुलेटिन नाम का प्रोडक्ट रहता है और वो आम को बढ़ाता रहता है। और विदाई अन्न, जैसे कि स्पाइसी फूड खाते हैं, उसी की वजह से अग्नि की विषमता आती है और आम की उत्पत्ति बढ़ जाती है।
मेरा कहने का मतलब यही है कि आम आम बढ़ गया तो हमको बता गया गया कि जो अध्याय में स्वरा रोगा अपनी मंदाग्नो, और मंदाग्न होने का प्रमुख कारण है कि आम की उत्पत्ति होना। और आगे भी चरकाचार्य ने बताया है कि शोकम मानव उद्वेगम भयपतप्तम सा वा यदा न पान उपयुज्यते तदप्यम प्रदर्शयति। मतलब हम टाइमिंग के हिसाब से नहीं खाते, कभी मीटिंग में खाते, कभी पार्टी में खाते, तो हमारा वो तन्मना भुंजित नाम का आहार रस नहीं मिलता है, उससे चिंतनात होता था। इसलिए हमारा वो याम युगम से भोजे, इसकी वजह से ज्यादा आम की उत्पत्ति हो जाती है। थैंक यू मैम। थैंक यू टू यू शरण, हमें आम की उत्पत्ति का से रिलेटेड इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए, एंड ये बताने के लिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा बैकबोन है सभी सिस्टमों का। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन। अप नेक्स्ट वी विल लाइक टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट। शी इज योगिता दहिया फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर। योगिता दहिया। Am I visible? Yes, you're visible as well as audible. Continue. Namaste to everyone. मेरा फेवरेट श्लोका है चरक विमान 8 से 14 नंबर श्लोका। कृष्णो ही, उसका एक मैं पार्ट बोलूं, कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमताम। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि लाइफ में जब भी मुझसे कोई पूछता है दैट व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ आई वांट टू बी अ स्टूडेंट, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट डेवलप्स डिवोशन, डिसिप्लिन एंड क्यूरियोसिटी इन यू। और ये तीनों चीजें ज्ञान लेने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम न्यूटन का एग्जांपल लेते हैं, तो वो जो उनके लाइफ में इवेंट हुआ था वो उनसे पहले भी होता आ रहा है, उनसे बाद भी होता आ रहा है, लेकिन उन्होंने उस इवेंट को एज ए स्टूडेंट देखा, वो उसको जाके बस खाए नहीं। तो ये उनका डिसिप्लिन था, वो क्यूरियस थे ऐसा क्यों हुआ, इसलिए उन्होंने उस पर ग्रेविटी की डिस्कवरी की। तो ये है कि हमें अपने अंदर हमेशा 24 घंटे रखना है, क्योंकि ये सृष्टि पूरी टीचर है, लाइब्रेरी है, बस हमें एज ए स्टूडेंट क्यूरियस रहना है उससे सीखने के लिए। फिर जैसे कि अभी हम ये कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, तो इससे भी मतलब हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि क्लीनिनेस हुई, फैमिली टाइमिंग हुआ, हाँ सबसे ज्यादा जरूरी योगा एक्सरसाइजेस। लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस हो गए, वो योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये जनपदों ध्वंस के थ्रू भी सृष्टि हमें सिखाती आ रही है। तो सृष्टि हमें हर वे में बहुत कुछ सिखाती आई है, बहुत सारी रिसर्चेस इस पे हो चुकी है अब, लेकिन फिर भी इसका ज्ञान अभी भी अपार है। ब्लैक होल वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अभी भी नहीं जान पाए हैं। तो ये पूरा जो सृष्टि है, मैं ये बोलना चाहूंगी लाइब्रेरी है। बस जरूरत है तो हमें अपने अंदर के स्टूडेंट को जागृत रखने की, ताकि हम इससे बहुत कुछ सीख सके। थैंक यू। थैंक यू योगिता। जैसा कि कहा जाता है कि आपको अपने अंदर के लर्नर को, एक स्टूडेंट को कभी मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इवन दो इफ यू नो एवरीथिंग यू कांट नो एवरीथिंग। सो या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर अस। अप नेक्स्ट वी विल लाइक टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट। शेख हमेरा सरवत, शेख हमेरा सरवत फ्रॉम हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, देहरादून, उत्तराखंड। शेख हमेरा सरवत। Am I visible? Yes, you are visible as well as audible. Continue. The reference of my shlok is from Charak Sutra, chapter 8, verse 17. Tasmadam ahitam chikarshata sarvam sarvada smritam asthaya sadvrittam manushtayam. In a simple words, the meaning of this verse is that all human beings who want their welfare should always follow the circle of life, keeping the memory conscious. The reason this is my one of the favorite verse is that as it contains the doings of a life in brief, that is what we should do and what we should not. It teaches us the way of living with oneself and the others. The purification of our body, but not only externally, but also internally. No matter how bad the situation of a life is, one should never lose the path of good virtues and ethics and go astray from the path that one should have to follow to live a peaceful and healthy life. One should never disrespect the elders, teachers, sacred books, and even the holy places. Acharya Charak
also emphasizes on physical, mental, and as well as spiritual health, and how these three are affects our body as a whole. Another important thing is that we need to focus on is the hygiene, which is basic nowadays due to the pandemic around. Sadvrit not only teaches us on how we should live in harmony with other people of the society, but also with the environment. At last, I want to conclude by saying that Sadvrit is an epilogue of celibacy, knowledge, charity, friendship, expectations, joy, and most importantly, internal peace. Thank you. Thank you so much. It is, as it is said, that if something doesn't kill you, it makes you stronger. So Sadvrit makes you more stronger and stronger. Up next, we would like to move to our next contestant. She is Sanya from Saraswati Ayurveda Hospital and Medical College, Gharshan, Mohali. Sanya? Sanya, are you there with us? I think she might not be connected with us. So we would like to move on to the next contestant. He is Nandana Hanswal from Pandit Khushilal GAC Bhopal. Nandana Hanswal. Hello, am I audible? Yes, you're audible as well as visible. Continue. Good afternoon to everyone. My verse is Nahi sarvavikarnam namato asti dhruva sthiti sa eva kupita dosha samuthana visheshita sthanantara gatishch janyate atman bahuna tasmad vikara prakritir adishtanantarani cha samuthana visheshta buddhya karmam samachare. It is taken from Charak Sutra 18. The chapter name is Trishothi Adhyay and the shlok number is 4 to 46. The meaning of this verse is, the verse is all about Anukti Vyadhi, typically means unsaid or unrevealed. He said it is difficult to describe every newly formed upcoming diseases. The reason is the vitation of doshas leads to different alignment according to disparity in location and etiological factor. Therefore, physicians should have to approach the diagnosis and treatment after knowing these three entities. The first one is Rogi Prakriti, nature of the disease. Second one is Adhisthana, the location of disease. Third one is Samuthana, the causative factor. The reason is why I like it most. As science and new technologies continue to advance in every field, in the same way disease are also moving forward. Due to desperate change in climate and dietary living habits, today we are seeing that every day a new pathogen is being discovered in front of us, and who knows how many new diseases will come in future. The recent example is COVID-19 pandemic. In such situation, regularly we are facing a big challenge that how to deal with it. Perhaps Acharya Charak knew that we would be surprised by newly emerging diseases in future. Hence, through this verse, he gave us new direction to understand the complete pathogenesis of newly formed disease by the help of these three factors. Undoubtedly, if it followed, we can bring a traditional system of medicine into re-existence. Thank you. Thank you to everyone. Thank you, Nandana. It is truly mentioned that belief goes hand by hand, as our Acharya Charak has written somewhere that this time is going to come. So people are more trusting and believing on Ayurveda because of this, and they should do this. So thank you for bringing that into light. Up next, we have with us is Neha Kumawat from National Institute Ayurveda, Jaipur. Neha? Neha, are you connected to us? मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, yes. We can hear you as well as see you. Continue. नमस्ते मैम. आज का मेरा श्लोक है तस्मात् आत्महितं चिकित्सिता सर्वेण सर्व सर्वदा स्मृतिम आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम तदीयत उत्तिष्ठन युगपथ संपादयेत अर्थद्वे आरोग्यम इंद्रिय विजये च इति. यह श्लोक चरक सूत्र स्थान
8 का 17वां श्लोक है। इस श्लोक में आचार्य चरक ने बताया है कि यदि जो मनुष्य सर्वदा अपना कल्याण चाहता है, सर्वदा अपने हित चाहता है, वह मनुष्य स्मरण शक्ति को जागरूक रखते हुए सद्वृत्त का पालन करता है, तो वह हमेशा आरोग्य होता है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है, अर्थात अर्थ द्वय को प्राप्त करता है। ये सद्वृत्ति यानी कि गुड कंडक्ट, अच्छा बिहेवियर आहार से विहार से, जो मनुष्य आहार और विहार को सम्यक रूप से ग्रहण करता है, समय पर लेता है और अपने शरीर में होने वाली सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से करता है, मीन कि वो अपने जो धारणीय वेग है उनको धारण ही करता है, अधारणीय वेगों को धारण नहीं करता। उस व्यक्ति की हमेशा दीर्घ धृति स्मृति हमेशा अच्छी रहती है, आहार विहार को सम्यक और परिणामजन्य रोग नहीं होते हैं। सद्वृत्त रोगों के मूल कारणों को रोकने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सद्वृत्त का पालन करने से अग्नि भी सुचारू रूप से रहती है, धातुओं की साम्यता रहती है, धातुएं घटती और बढ़ती नहीं है और सभी प्रकार की मलों का सुचारू रूप से सही समय पर बाहर निकलता है, जिससे कि हमारी इंद्रियां हमेशा प्रसन्न रहती हैं। सद्वृत्त का पालन यदि हम शारीरिक रूप से करते हैं तो हमारे सभी अंग अच्छे रूप से कार्य करते हैं, और यदि हम मानसिक रूप से भी प्राप्त करते हैं तो हम अच्छा बोलेंगे, मानसिक रूप से करेंगे तो हम अच्छा बोलेंगे, और अच्छा बोलने से हमारे जो शरीर में हम से निकलने वाली जो वाइब्रेशन होती है वो पॉजिटिव निकलती है, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के निकलने से हमारे चारों तरफ का वातावरण होता है वो कि स्वच्छ होता है, और वातावरण के स्वच्छ होने से लोगों में भी पॉजिटिवनेस आती है। और यही हम देख रहे हैं कोरोना के टाइम में कि यदि हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, यदि तो ना कोरोना के टाइम में जो कोरोना वॉरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, तो उनके जो मरीज आएंगे, पेशेंट आएंगे, वो भी पॉजिटिव ही रहेंगे और उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिलेगा कि वो अच्छे से ठीक हो सकेंगे समय पर। और थैंक यू मैम। Thank you so much, Neha, for telling us that again Sadvrit is how much important, and our Acharya Charak has already told it that follow Sadvrit so that you will not fall ill, you will not fall into conditions like pandemic. So thank you so much for throwing light on it. Up next we have is Miss Pallavi from My Bhago Ayurvedic Medical College, Punjab. Pallavi. Hello, ma'am. Yes, you are audible as well as visible. Continue. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं इस कॉन्टेस्ट के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने आज टीचर्स डे के मौके पे ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसको हम आज सेकंड स्लॉट में कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा श्लोक है वो श्लोक है, यो ही सम्यकम न जानेति शास्त्रम शास्त्र अर्थम एव च न कुर्यात सक्रियाम चित्रम चक्षुरेव चित्रकृत। इस श्लोक में आचार्य चरक ये बोलना चाहते हैं, सबसे पहले ये श्लोक जो है वो चरक चिकित्सा स्थान 30th में लास्ट जो उसका श्लोक है वहां से मैंने ये रेफर किया है। तो इस श्लोक में आचार्य चरक हमें ये बताना चाहते हैं कि एक ऐसा पुरुष जिसको कि आयुर्वेद शास्त्रों की कोई ज्ञान नहीं है, जिसने शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं है, या फिर जिसने कभी प्रैक्टिकली किसी भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर को होते हुए नहीं देखा, वो कभी भी किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। और अगर वो ऐसा कभी ट्राई करता है कि वो ऐसे किसी को ट्रीट करे तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता। पर और इसका उन्होंने जो सिमिलैरिटी बताई है, समानता बताई है, वो इससे बताई कि एक अंधा व्यक्ति जो है वो कभी पेंट नहीं कर सकता। अब ये श्लोक मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये श्लोक हमें रियलिटी और रियलिटी इन दोनों चीजों का डिफरेंस बताता है। क्योंकि आजकल के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि जिस पर्सन के पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो होते हैं टॉप पे, वो होते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपना बहुत अच्छा एक बिजनेस सेटअप कर पाते हैं, अपना बहुत अच्छा ओपीडी सेटअप कर पा सकते हैं अगर हम इसको मेडिसिन से रिलेट करें तो। और आजकल के टाइम पे तो जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी पेंट कर सकते हैं। तो ये श्लोक मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि आचार्य चरक ने ऐसा बोला कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम अगर कि हमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है और बुकिश नॉलेज नहीं है तो हम किसी को ट्रीट नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ज्यादा चीज है इस चीज को बोलने के लिए कि प्रेजेंट सिनेरियो में इस चीज को कोई फॉलो नहीं करता। अगर हम इंडियन भी हैं, अगर हम भारतीय सभ्यता से हम चरक संहिता को सबसे ऊपर मानते हैं,
फिर भी हम इस चीज को फॉलो नहीं करते। हम इतनी मेहनत करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, मॉडर्न बुक्स पढ़ते हैं, आयुर्वेदा बुक्स पढ़ते हैं, फिर भी हम BAMS जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती आजकल के मेडिकल फील्ड में भी। तो मैं इसी के साथ खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आप सबने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया ताकि हम अपने व्यूज जो हैं चरक संहिता से रिलेटेड वो आप सबको बता सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि आपने अगर पहला कदम रख दिया है तो आपके पीछे और 10 लोग आएंगे वो कदम रखने के लिए। तो आप बस अपने शास्त्रों का ज्ञान और अपना प्रैक्टिकल नॉलेज अपने साथ रखिए और हमेशा आयुर्वेद पे भरोसा करते रहिए, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सक्सेसफुल हो नहीं सक्सेसफुल हो, दैट इज डजंट मैटर। आपको जितना आता है वो मैटर करता है। सो थैंक यू सो मच पल्लवी। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट। शी इज नमिता पवार फ्रॉम Pandit Shiv Shakti Lal Sharma Ayurvedic College, Ratlam. Namita Pawar. Yes, you're audible as well as visible. Continue. और सर मैम, आज का मेरा विषय चरक सिद्धिस्थान अध्याय 12 से लिया गया है। यथा अम्बुज वनस्य अर्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा प्रबोधन प्रकाशास्तथा तंत्रस्य युक्तः। अर्थात जिस प्रकार सूर्य की रोशनी कमल के वन को प्रफुल्लित कर उठती है, दीप के द्वारा ग्रह प्रकाशमान हो उठते हैं, ठीक ऐसे ही तंत्र युक्ति भी शास्त्र के लिए दीप की तरह ही कार्य करती है। मेरे विषय को और भी विस्तार में जानने से पहले जानते तंत्र युक्ति क्या है तथा मैंने इसे आज का अपना विषय क्यों चुना है। तंत्र युक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनी है, तंत्र धन युक्ति। तंत्र का अर्थ होता है शास्त्र, कवच, चिकित्सा, प्रोटेक्टर। अर्थात तंत्र इज डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर साइंस which helps to protect our body। तथा युक्ति का अर्थ होता है योजना या तो योज्यते, अर्थात जो बुद्धि के द्वारा बनाई गई योजना। तंत्र युक्ति को आचार्य चरक ने अपने शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसे चरक सूत्र 9 में चिकित्सा चतुष्पाद का वर्णन करने पर भी आचार्य चरक सूत्र स्थान 10 के पहले ही श्लोक में कहते हैं, चतुष्पादम षोडश कलम भैषजमिति भिषजो भाषन्ते यदुक्तम पूर्वाध्याय षोडश गुणमिति तद भैषजम युक्ति युक्त मलम आरोग्येति भगवान पुनर्वसु आत्रेय। अर्थात युक्ति यह चिकित्सा चतुष्पाद भी तभी सफल होंगे जब वह युक्ति युक्त होंगे। इसीलिए आप जान सकते हैं कि तंत्र युक्ति का अर्थ हुआ वह युक्ति या योजना जिसके द्वारा हम शास्त्र के गुप्त अर्थों को जान सके। बिना तंत्र युक्ति के शास्त्र एक वह मार्ग है जिस पर आप एक वैद्य बनने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं, परंतु वहाँ पूरा अंधेरा ही है। वह तभी सफल हो सकता है जब वहां पर उस मार्ग पर प्रकाश होगा और वह प्रकाश तंत्र युक्ति का होगा। तंत्र युक्ति का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे चरक सूत्र अध्याय 13 में आचार्य चरक कहते हैं, जलम उष्णम घृतम पेयम यूषस तेले अनुशस्यते वसा मज्जग्योस्तु मंडः स्यात् सर्वेश मश्न उष्ण मत अम्बुवा। जैसे घृत का अनुपान उष्ण जल, तेल का पेय तथा यूष, वसा मज्जा का मंड। लेकिन फिर इन चारों के अलग अलग अनुपान कह देने पर भी अंत में आचार्य चरक कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यानी और इन चारों के बाद हम उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ प्रदेश तंत्र युक्ति लगती है। उनका कहने का मतलब ये है कि और भी ऐसे बहुत सारे पान हैं जिस पर हम उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आचार्य चरक और भी बहुत सारे ऐसी चीजों के अनुपान बताते उष्ण जल जहाँ प्रयोग करना है, लेकिन संहिता में अति विस्तार का दोष हो जाता, जिस वजह से उन्होंने संक्षिप्त में कह दिया अंत में सर्वेश उष्ण मत अम्बुवा। इससे आपको समझ सकते हैं कि यह तंत्र युक्ति हमारे शास्त्र के अध्ययन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह मेरा पसंदीदा श्लोक इसीलिए है क्योंकि यह वह मार्ग है जिस पर हम चलकर ही हमारे शास्त्र के गुप्त अर्थों को जान सकते हैं तथा एक सफल वैद्य बन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू नमिता। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगी अगर आप इसी तरीके से हमारे जो पुराने टेक्स्ट है उन सबको इस तरीके से रिस्पेक्ट देंगी। डेफिनेटली यू गोना बी वेरी सक्सेसफुल। सो थैंक यू सो मच। अप नेक्स्ट वी हैव श्री लक्ष्मी मातर। श्री लक्ष्मी मातर फ्रॉम PNNM Ayurveda Medical College, Kerala. Lakshmi. Hi ma'am, am I audible? Yes, you're audible as well as visible. Continue. Okay. Good afternoon to all.
With all respect to everyone present here, let me recite my favorite sloga from Charaka Samhita, Chikilsasthana Unmada Chikilsada, 85th sloga. Ishtadravya vinashatu mano yasyobahanyade tasya tat sadrisha prapti santva shwase shamam nayet. This sloga is quoted among the regiments to be followed while treating a person afflicted with unmada. The sloga literally means if a person is mentally deranged due to loss of something he or she loves the most, he or she should be made to regain a similar thing, and simultaneously they should be consoled with pleasing assurances, as a result of which they become free from the ailment. And to the point why this turned to be my favorite sloga is the excellence of Acharya Charaka in understanding human psyche. This sloga is not only confined in Unmada Chikitsa. While reading between lines, we can understand that this is applicable to every one of us in our lives, especially in this COVID era. Life isn't fair all the times, right? It might turn to be a heart-wrenching one when we lose some of our favorite stuff. It might be even a small pain to a person who means so much to us. Unfortunately, it is very tough to get through those times, and this might lead to attempting crime or even suicide. But remember, even in those worst times, the presence and pleasing promises of someone mean a lot to us, right? And when I think about this sloga, I feel very thankful to all those who stood by my side in all my bad times, and may this be a reminder to everyone present here to be a part of healing a mind of someone who are mentally deranged, and to be nice to everyone around us. And in this context, I would like to remind you about late Sushant Singh. Maybe someone's mere presence could have prevented him from giving up. So let me conclude by quoting that Prasanna Atma Indriya Mana is very important to remain swastha. And this is all about my favorite slogan. Thank you. थैंक यू श्री लक्ष्मी. आपने जिस तरीके से श्लोक गाया वही हमें एक्चुअली हमारे मन को भा गया, प्रसन्न कर दिया. So thank you so much for singing so beautifully and presenting your topic and correlating it to today's situation. So thank you so much. We would like to move up on to the next contestant. She is Akansha Soni from National Institute Ayurveda, Jaipur. Akansha Soni. Am I audible now? Yes, you're audible as well as visible. Continue your presentation. Okay. Thank you, ma'am. नमस्कार. चरक संहिता के शारीर स्थान दूसरे अध्याय अतुल्य गोत्र अध्याय का 46वां श्लोक है. नरोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष सक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तुप सेवी च भवति अरोगः. यानी जैसे कि आधुनिक समय में भी कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इसे महर्षि चरक बहुत पूर्व ही बता गए हैं कि मनुष्य अपने परम प्रिय देह को रोगग्रस्त होने से पूर्व ही कैसे चिकित्सा करे. नरोहित आहार सेवी यानी अगर मनुष्य पंच भौतिक तत्वों से संगठित आहार ग्रहण करता है, साथ ही उसकी प्रकृति के अनुकूल आहार ग्रहण करता है, उससे उसके धातुओं की पुष्टि होती है. कहा है समह गुण से सम की वृद्धि होगी. पंच भौतिक अगर आहार है तो उससे पंच भौतिक संगठित शरीर की भी पुष्टि होगी. ऐसे ही हितकर विहार, विहार यानी व्यवहार, जो निर्देशित व्यवहार या विहार बताए गए हैं उसका पालन करें. इसका एक दृष्टांत लेते हैं. जैसे कि स्नेहपान में कहा है, स्नेहपान पश्चात उष्ण जलपान और साथ ही नियवात का स्थान. अगर आप नियवात का स्थान ग्रहण नहीं करते तो उससे स्नेहपान से उत्पन्न होने वाले उपद्रव जो है उसके होने की संभावना है. समीक्षाकारी यानी सोच विचार करके कार्य करें. सोच विचार मन का एक विषय है, इसलिए कहा है मन के अधीन होकर कार्य करें. विशेषु असक्तः यानी विषय इंद्रियों को अपने वश में करके कार्य करें. अगर आप ये देखेंगे कि भाई हाँ अब मन चंचल है, उसे तो कभी ये चाहिए, उसको कभी ये चाहिए, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बुद्धि से कार्य नहीं कर सकते, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी. दाता मनुष्य को हमेशा ही दानवान होना चाहिए. सत्य ये तो कहा ही है कि हमेशा सत्य वचन कहें. जो आचार रसायन है उसमें दीर्घ आयु के लिए भी कहा है कि सत्य वचन हमेशा बोले. समह यानी कि समान दृष्टि से देखने वाला. आत्मा के जो 22 गुण है जैसे सुख दुख राग द्वेष, इन सब के लिए समान भावना रखनी चाहिए. क्योंकि अगर आप एक भाव लेकर बैठ जाए,
जैसे अपन कहें कि दुख भाव है, अगर आपको कोई रोग हुआ, आप दुख भाव लेकर के बैठ गए तो आप व्याकुलता से ही पीड़ित रहेंगे, आप आरोग्य की ओर नहीं जा सकेंगे। क्षमावान यानी कि सहनशीलता, सहनशीलता भाव होनी बहुत जरूरी है। तभी कहा है कि धार्य वेग में कहा है 10 धार्य वेग जो आपको हमेशा धारण करना है, जिसमें क्रोध, ईर्ष्या, आलोचना, दूसरों के प्रति गुस्सा करना, ऐसे अशब्द न बोलना, इन सबको धारण करना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। आत्मोपदेशी सेविकारी मतलब कि आप तो वचनों का आचमन करें। यह इसका एक चिकित्सा से रिलेट करते हैं कि उन्माद का एक निदान है, उसमें लिखा है कि अगर आप अपने देव, गुरु, ब्राह्मण इनका अपमान करते हैं तो आपको उन्माद होने के कारण है। इसी प्रकार महर्षि चरक ने उपाय बताए कि आप रोगग्रस्त होने से पहले ही कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। और साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे श्लोक क्यों पसंद है। एज सूत्र स्थान में बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलम आरोग्यम, मूलम उत्तमम आरोग्यम, मतलब आरोग्य के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए आपको आरोग्य होना जरूरी है और आरोग्य के उपाय यही बताए गए। धन्यवाद। थैंक यू आकांक्षा, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए कि अगर आपका बॉडी हेल्दी है तो यू कैन सर्वाइव एनी डे, एनी सिचुएशन एंड एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच। Up next, we would like to move on to Priyanshi Chitransh from Shri Lal Bahadur Shastri Smarak State Government Ayurvedic and Hospital, Handia, Prayagraj, UP. Priyanshi Chitransh. Yes, Priyanshi, you are visible. Okay, ma'am. May I start? Yes, you can start. First, चिकित्सा वहिनी विशस्ते तुष्टयातुर्हितं प्रति, चिकित्सा वहिनी विशस्ते तुष्टयातुर्हितं प्रति, यदि हास्ति तद अन्यत्र यत्र हास्ति न तत्र क्वचित्। यह श्लोक मैंने चरक संहिता उत्तरार्ध के सिद्धि स्थान के 12 अध्याय अथातो उत्तर बस्ती सिद्धिम व्याख्या श्यामा श्लोक नंबर 53 से लिया है। इसका अर्थ है कि महर्षि अग्निवेश द्वारा रचित यह चिकित्सा शास्त्र यानी संहिता निरोग तथा रोगी दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिए हितकारी है। चिकित्सा विषयक त्रिकाल बाधित सिद्धांत समूह जो इस अग्निवेश संहिता में विद्यमान है वही सब अन्य संहिताओं में भी विद्यमान है, लेकिन जो इस संहिता में नहीं है वो किसी और संहिता में भी नहीं है। यदि हास्ति तद अन्यत्र मतलब सचमुच चिकित्सा संबंधी सभी ज्ञातव्य विषय प्रस्तुत चरक संहिता में विद्यमान है। हमारा ही नहीं अपितु संसार के विद्वानों का विचार एवं विश्वास है कि समस्त चिकित्सा पद्धतियों का जो मूल है वो आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद के समस्त सिद्धांत, दृष्टिकोण तथा विचार पद्धतियां इस संहिता में पूर्ण रूप से निबद्ध हैं। मन चले आज चिकित्सकों की कल्पना पद्धति कुछ भी हो, परंतु विषय विचारकों को इसमें एक भी विषय ऐसा नहीं दिखाई देता जो संदेह युक्त हो। यदि कोई संदेह मिल भी जाता है तो अगर हम इसमें अच्छे से गंभीरता से विचार कर ले तो वो दूर भी हो जाता है, क्योंकि इसकी विवेचन पद्धति इतनी स्पष्ट एवं सुबोध है कि इसमें किसी प्रकार का संदेह का अवसर ही नहीं रहता है। तो अब यह श्लोक मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इस श्लोक में पूरी चरक संहिता का हिसार है। जैसे चरक संहिता सूत्र स्थान में पुनर्जन्म का वर्णन है जो अन्यत्र और कहीं भी नहीं है। चरक संहिता की चिकित्सा स्थान में रसायन का बहुत अच्छा उपयोग बताया गया है कि दीर्घमायु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वया प्रभाव वर्ण शौर औदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम वाक् सिद्धि प्रणति कांतिम लभते न रसायनात् लाभोपायो ही सस्ता नाम रसायन रसादिनाम रसायनम। तो उदाहरण के लिए जैसे हरित की वो वात पित्त कफ तीनों दोषों को दूर करता है। हमारे इंद्रिय स्थान में इंद्रियों का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग बताया गया है। इसी चरक संहिता में अष्टाहार विशेष विधि आयतन, आहार विहार, हमारा अग्नि डाइजेस्टिव फायर जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो मेरा ये कहना है कि चरक संहिता अपने आप में ही परिपूर्ण है। That's why I like it most. Thank you so much. थैंक यू प्रियांशी। आयुर्वेदा उसमें कोई शुक्र शुभा ही नहीं है कि आयुर्वेदा एक ग्रंथ है, केवल वो एक जीने का तरीका है, वो पूरा उसमें पूरा संसार का ज्ञान है। तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया। Up next, I would like to call Soumya Tiwari.
Soumya Tiwari from Veena Vadini Ayurved Medical College, Bhopal. Soumya, are you here with us? Might be she's not connected to us. Let's move on to our leftover participant who were not able to present their presentation because due to some connectivity issues. So let's rewind the list again. The first serial number which we lost due to some connectivity problem is Swapnil Khandagle from Sri Gurudev Ayurveda College, Mozari District, Amravati. Swapnil Khandagle. Swapnil, are you there with us? Yes, ma'am. Yes. Swapnil, turn on your video. Yes, ma'am. Hello. 1 minute, ma'am. Yes, you are visible to us. Continue your presentation. Hello, ma'am. Yes, you are audible to us. Continue your presentation. Yes. Yes, ma'am. एक सेकेंड स्वप्निल, आप यदि कंफर्टेबल नहीं है बेटा तो आप शायद ड्राइव कर रहे हैं तो आप पहुंच जाएं, उसके बाद कर लीजिएगा, है ना? ओके मैम. ओके मैम. ऑन रोड है ना? यस मैम. यस मैम. 5 मिनट के बाद. हाँ, इट इज नॉट कंफर्टेबल, आप आराम से पहुंच जाएं, हम आपको एड ऑन कर लेंगे, ठीक है? ओके. ओके मैम. 5 मिनट. Okay, Swapnil, we will come to you later. और अच्छे से ड्राइव कीजिएगा प्लीज, कोई हरी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप जब भी पहुंचेंगे कंटिन्यू हो जाइएगा, ओके? ओके मैम. ओके मैम. थैंक यू. Up next, we would like to move on Vishakha Sanjay Ahar. Serial number 5. Are you there with us, Vishakha? She's still not connected with us, so we'd like to move on to another. Next, we have Sanya. Sanya from Saraswati Ayurveda Hospital and Medical College, Gharshan, Mohali. Sanya, are you there with us? Here we come to the end of the program, but our contestant. I think Soumya is there in the room, na? Soumya Tiwari. Ma'am, Sanya, it's 12. Yes, ma'am. Soumya Tiwari has done. Okay. आप ओपन प्लेटफॉर्म कर दीजिए, जो भी होगा, जो नहीं दे पाया है वो अपने आप ही सौम्या तिवारी का हो गया है. 20 serial number. Yes, we have called his name from Veena Vadini College. Okay. तो आप पूछ लीजिए, कोई और बच्चा हो तो अपने आप. Anybody else who is there present with us on the panel? सौम्या का मेरे हिसाब से अभी हुआ नहीं है. Serial number 20, सौम्या तिवारी. Okay, sir. Might be we have taken her name, but she was not there with us at that time. So let's continue. Up next we have is Soumya Tiwari from Veena Vadini Ayurved Medical College, Bhopal. Soumya, if you're there with us, get connected, please. Unmute yourself. Soumya? नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है शायद. Yes, ma'am. She is not able to unmute herself probably. Okay. I will try now. Okay, ma'am. Now you can unmute yourself. Soumya, please try. Ma'am, she is asking you to unmute her. Yes, नहीं, यहाँ से कर दिया है मैंने, वो unmute हो जाए, और अभी unmute है वो. Okay. सौम्या, अपना ऑडियो ऑन करें. She's trying to speak, but she isn't able to. Okay, unmute हो गई है अभी वो, देखिए. Still some audio connectivity problem, ma'am. हाँ सौम्या, यहाँ से मैंने unmute कर दिया बेटा. Unmute कर दिया है, आप एक बार ट्राई करें प्लीज. Yes, ma'am. I'm trying. Yes, Soumya, you are audible. Finally. Oh, fine.
Now, ma'am, am I audible? Yes, you are audible as well as visible. Continue. तो मेरा टॉपिक है जो आवरण से हम वात व्याधि चिकित्सा 28वें अध्याय में जब आवरण पढ़ते हैं तो किसी को भी ये टॉपिक मोस्टली समझ में नहीं आता है। तो जब चिकित्सा में हमारे चरक के सिद्धांतों में ये कहा गया है कि जो वह द्रव्य के बारे में जानता है वो और जो युक्ति के बारे में जानता है, जो वैद्य युक्ति लगाना जानता है, वो हमेशा द्रव्य जानने वाले वैद्य से हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। पर ऐसा मानना है कि जो वैद्य आवरण के बारे में जानता है वो बुद्धिमान कहलाता है। इसीलिए जो श्लोक नंबर 61 है, मैं सिर्फ एक उसका रेफरेंस लेना चाहूंगी। लिंगम पित्ताव्रते दाहस्तृष्णा शूलम भ्रम प्लमः कट्व अम्ल लवणो उष्णे च विदाह शीत कामिताः। तो आवरण के कॉन्सेप्ट को भली प्रकार से समझने के पहले हमें दोषों को समझना जरूरी है। तो दोषयंती इति दोषः, तो केवल इसकी निरुक्ति अगर समझ ली जाए तो हमें दोषों के बारे में क्लियर नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि दोष क्या है, तो वो सूक्ष्मता से जो शरीर में सर्वचारी है, यानी कि जो सर्व शरीर में चरण करते हैं, वह दोष कहे जाएंगे। अवस्था पाक जब आहार का होता है उसमें जो सर्वप्रथम कफ की निर्मृति, द्वितीय अवस्था पाक में पित्त की निर्मृति और तीसरे में वात की निर्मृति होती है। तो यहाँ से हम दोषों के एक कॉन्सेप्ट को अनवील करते हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि दोष को जब वो सर्व शरीर गत है तो फिर उसको हम पर्टिकुलर स्थानों पर कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे पक्वाशय, कटी, अस्थि, स्रोत, ये सारे वात के स्थान हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस स्थान पर उस दोष की अधिकता है और वहां पर वो ज्यादा कार्यकारी है। तो उस दोष में अगर जैसे कि चिकित्सा हम करेंगे उस दोष की, तो वो सर्व शरीर में कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे कि अगर सर्व शरीर में वात प्रकोपित है और वहां हम बस्ती चिकित्सा करते हैं, बस्ती के माध्यम से, बस्ती में और या पक्वाशय स्थान में, तो वहां पर हमारी सर्व शरीर में वात कंट्रोल में आ जाती है। तो ये एक दोष का कॉन्सेप्ट है। अब हम आवरण को देखें तो आवरण जो है अपने एक स्रोतस में दुष्टि के कारण दूसरे स्रोतस में अगर दुष्टि होती है तो उसे आवरण कहा जाता है। अब आवरण के कॉन्सेप्ट में हम देखें कि 5 प्रकार की वायु या पित्त या कफ को देखा जाए तो हमको ये कहना गलत होगा कि सिर्फ वात के सिर्फ 5 प्रकार हैं, जैसे कि प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो ये कहना गलत हो जाएगा। हम इन 5 भेदों को वात का अगर आत्मा माने, पित्त के 5 भेदों को पित्त की आत्मा माने और कफ के 5 भेदों को उसकी आत्मा माने, तो ये कहना सही होगा, क्योंकि वात का सिर्फ 5 प्रकार नहीं होते। मूर्त और अमूर्त भेद से हम वात के 2 प्रकार कह सकते हैं, और पित्त के भी इसी प्रकार, पित्त को हम मूर्त कहेंगे और कफ को मूर्त कहेंगे। इसीलिए आवरण के कॉन्सेप्ट से पहले हमें मूर्त अमूर्त का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जो अमूर्त वायु होती है वो मूर्त वायु की शक्ति कही गई है। क्योंकि जैसे कि वातकला कली अध्याय में आचार्य चरक ने कहा है कि जो मूर्त वायु है वह सारे संसार में ऋतुओं में परिवर्तन और जैसे कि सूर्य चंद्रमा की गति, ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अतः अमूर्त वायु ही मूर्त वायु की शक्ति है, ऐसा कहना उचित है। अब हम देखेंगे कि मूर्त, अमूर्त और इनका आवरण कैसे होता है। तो अमूर्त का मूर्त पे आवरण पहले हम देखेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पलता मैं लूं, उदाहरणतः, तो पित्त अगर वात पर आवरण करती है, तो जैसे कि पित्त ही वात पर आवरण कर सकती है, पर वात पित्त पे क्यों नहीं? क्योंकि अमूर्त कभी भी मूर्त पे आवरण नहीं कर सकता। तो पित्त जब वात पर आवरण करेगा, अगर रोगी में हमें दिखता है कि श्वास में कोई भी प्रॉब्लम है, रोगी श्वास नहीं ले पा रहा और उसके पित्त स्थान यानी पश्चिमाशय में उसको दाह की उत्पत्ति है, तो हमें श्वास की चिकित्सा करने से पूर्व पित्त की चिकित्सा करना अत्यधिक जरूरी है। और हम अगर उसे विरेचन देते हैं तो हमें श्वास में कंट्रोल डेफिनेटली मिल जाएगा। दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें कि अमूर्त का अमूर्त पर आवरण, जैसे कि वायु अमूर्त है और वो दूसरी वायु अमूर्त पर आवरण करे, जैसे कि आमवात का एग्जांपल लिया जाए, तो आमवात में कंडीशन होती है कि समान वायु के स्थान पर जहां आमाशय का अधोभाग को हम आम का स्थान कहेंगे, वहां पर समान वायु का स्थान है, क्योंकि समानो अग्नि समीपस्तः, अतः उस स्थान पर दुष्टि के कारण आम की उत्पत्ति होगी। आम की उत्पत्ति के कारण वह आम जब सर्व शरीर में सभी संधियों में जाके स्थित होगा तो हमें आमवात जैसी कंडीशन दिखती है। और सर्व संधि यानी सर्व शरीर, ये व्यान वायु का स्थान है, मतलब समान वायु की दुष्टि के कारण हमें व्यान में दुष्टि दिखाई दी। उसी से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर समान के द्वारा व्यान का आवरण किया गया है। तो हमें चिकित्सा क्या करनी होगी? हमें संधियों में चिकित्सा करने के बजाय
अगर हम अग्नि की चिकित्सा करें, यानी कि समान के स्थान पर अग्नि दीपन पाचन का चिकित्सा करें, तो हमारी आम की चिकित्सा डेफिनेटली हो जाएगी और हमें आम बात में डेफिनेटली रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये हमारी एक तरीके से अमूर्त से अमूर्त का आवरण स्पष्ट हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सौम्या, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इतने इजी तरीके से समझाने के लिए कि हम सब तक वो पहुंची बात। थैंक यू सो मच। We have one more contestant with us who was not able to join us due to some network connectivity issue, but he has been joined us now. So he is serial number 5, Vishakha Sanjay Ahar. Vishakha, she is serial number 5, Vishakha Sanjay Ahar from Government Ayurved College, Osmanabad. Yes, we can see Hello, you, ma'am. Vishakha. Yes, we can see you as well as we can hear you also. Continue your presentation. Thank you, ma'am. Good afternoon to everyone. Today's my topic is संसर्जन क्रम के लाभ और उसका रेफरेंस है चरक सिद्धि स्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 12। अध्याय का नाम है कल्पना सिद्धि अध्याय। यथा अनु अग्नि तृणगो मयादे संधोक्षमानो भवति क्रमेण महान् स्थिर सर्वपचत् तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरग्नि। तो यथा अनु अग्नि तृण गोमयादे संधुक्षमानो भवति क्रमेण। आत्रेय उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार से छोटी सी आग में हम घास गोबर वगैरह डालकर फुंकार लगाए तो वह बड़ा और स्थिर अग्नि बन जाता है। महान स्थिर सर्वपचत, और उसमें उतनी ताकत आ जाती है कि वो किसी भी प्रकार को अन्न को पका सके। तो तथैव शुद्धस्य पेयादिभिर अंतराग्नि, मतलब कि हम ठीक उसी तरह हमारे शरीर में हमारा जो जाठराग्नि होता है वो संशोधन कर्म के पश्चात मंद हो जाता है। तो उसे प्रदीप्त करने के लिए हमें पेया विलेपादि का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो पूरा सिद्धि स्थान ही बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मणाम वमनादीनाम असम्यक करणात् पदम यत्रोक्त साधनम स्थाने सिद्धि स्थानम तदुच्यते, मतलब कि सभी सिद्धि स्थान में वमनादि पंचकर्म से जो अयोग होते हैं उसके उपद्रव का कैसे शमन करना चाहिए उसके सभी के उपाय बताए हैं। और संसर्जन क्रम के लाभ, मुझे ये श्लोक सबसे ज्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के ये पूरा स्थान आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम मानते हैं हम कि संशोधन कर्म करने से दोष समूल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात अग्नि तो मंद हो जाती है और उस अग्नि को पुनः प्रदीप्त करने के लिए हमें संसर्जन क्रम में जो पथ्याहार बताए उसका प्रयोग करना चाहिए। और उसमें पेया विलेपी अकृतयुष कृतयुष अकृतमासरस कृतमासरस इसका वर्णन किया है। अगर आहार तो महाभेषज है, आहार से अग्नि प्रदीप्त रहेगी तो आम उत्पत्ति नहीं, और आम नहीं तो कोई व्याधि भी नहीं होगा। और ये भी चरकाचार्य ने बहुत सविस्तर बताया है। वो कहते हैं कि अगर किसी रुग्ण में हीन शुद्धि के लक्षण दिख रहे तो उसे एक अन्न काल में संसर्जन क्रम देना चाहिए और उसके बाद हम उसे सामान्य भोजन दे सकते हैं। मध्यम शुद्धि के लिए 2 अन्नकाल और प्रवर शुद्धि के लिए 3 अन्नकाल तक संसर्जन क्रम का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आहार को महाभेषज और आहार के साथ अग्नि को प्रदीप्त रखने के लिए संसर्जन क्रम में बताया है। इसी वजह से मुझे ये सूत्र सबसे ज्यादा पसंद आया। थैंक यू। थैंक यू विशाखा। इट वाज, अगर हम आपको मिस कर देते, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाती तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा डीमेरिट होता हम लोगों का कि हमारे हाथ से इतनी अच्छी नॉलेज निकल जाती। थैंक यू सो मच। I hope now Swapnil is connected with us. Swapnil, are you there with us? Yes, ma'am. Okay. Start your presentation. Yes, ma'am. My shlok is चरक सूत्र स्थान 24 अध्याय 3rd नंबर श्लोक। विधिना शोणितम जातम शुद्ध भवति देहिनाम देश काल ओकसात्म विधिर्य संप्रकाशते तद विशुद्धम हि रुद्रम बल वर्ण सुखायुष युनक्ति प्राणिनम प्राण शोणितम अति अनुवर्णते। यानी कि शुद्ध शोणित से अपने शरीर का
पोषण अगर होगा तो अपने शरीर का बल वर्ण और जो सुख है, यानी कि सुख बोले तो साइकोलॉजिकल कंडीशन भी आ गई उसमें, पूरा साइकोलॉजिकल मेंटेनेंस और बल भी आ गया और वर्ण भी आ गया। तो ऐसा जो शुद्ध रक्त जो है ना, तो वो देश काल और ओक सातमय से बनता है। यानी कि अगर कोई विदर्भ का आदमी है, अगर वो कोकण में गया तो उसका जो शुद्ध रक्त बनता था, तो शुद्ध रक्त चेंज हो गए, यानी कि दुष्ट होगा। यानी कि देश का जो सातमय था वो अगर साधारण देश का जो रुग्ण है, अगर वो अनुपदेश में गया तो उसको वो सातमय नहीं होगा, यानी कि असतमय होगा और दुष्ट रक्त से उससे व्याधि होगी। ऐसे एक स्किन डिसीज का पेशेंट था, विदर्भ में जॉब भी करता था, यानी कि अनुपदेश का था वो, और विदर्भ में आगे जॉब करने लगा तो उसका स्किन का डिसीज होगा। तो उसके सिर्फ अपन ने ट्रीटमेंट की कि तुम फिर से जाओ वहां पे रहो, उसके देश में जाते ही उसका स्किन का डिसीज आप ठीक हो गया। और जो है काल के ऊपर भी है रहता है कि शुद्ध रक्त बनता कैसा है। देश के ऊपर तो अपन ने एग्जांपल देख लिया, काल के ऊपर भी रहता है। जैसे जैसे सीजनल चेंजेस आएंगे वैसे वैसे रक्त का कंस्टिट्यूशन भी बदलता है और उसका भी साथ में रहता है। यानी कि और ओ का साथ में भी है। अगर किसको गोदुम की आदत, यानी कि विदर्भ के लोगों को गोदुम खाने की आदत है, अगर उन्होंने सिर्फ चावल खाना ही स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो असात्मय पदार्थ है वो अगर उन्होंने अधिक अधिक प्रमाण में खाने लग गए तो उसका दुष्ट रक्त होगा और दुष्ट रक्त से ही व्याधि होगी। इसलिए सबसे मेन है वात पित्त कफ तो है ही, और रक्त जो है कि नहीं, एक आध पेशेंट आ गया तो उसका देश तो चेंज नहीं हुआ, काल तो नहीं चेंज है ना। कोई कोई आदमी को एक सीजन में अच्छा लगता है, कोई को दूसरे भी सीजन में अच्छा लगता है, तो उसके रक्त के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। यानी कि काल का सातमय भी वहां पे भी सोचना होगा और ओ का सातमय भी सोचना होगा। इसलिए शुद्ध रक्त ही शरीर का पोषण करता है और शुद्ध रक्त से ही सब जो व्याधि है, यानी कि अशुद्ध रक्त से ही सब व्याधि होती है और शुद्ध रक्त से ही बल वर्ण और सुख की प्राप्ति होती है। एक पेशेंट था, उसको दौर्बल्य बहुत ही था, उसके हेतु निकाले तो रक्त दुष्टि के भी थे और देश और काल का असात्मय भी था। तो हमने रक्त मोक्षण किया तो उसको बल की प्राप्ति हुई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसके अपन शुद्ध रक्त के ऊपर अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपन ने अगर ऑर्गन्स देखे तो यकृत और प्लीहा तो मेन ऑर्गन बताए हुए। फुफ्फुस जो है, फुफ्फुस की उत्पत्ति सुश्रुत ने शारीर स्थान के 4 चैप्टर में भी शोणित फेन प्रभाव भी बताई है। हार्ट की उत्पत्ति, हृदय की उत्पत्ति भी रक्त मेद प्रसादात रक्त कप प्रसादात हृदय ऐसे बताई है। और वृक्क की उत्पत्ति भी रक्त मेद प्रसाद से बताई है। यानी कि सब जो ऑर्गन है ना जो रक्त से बनते हैं, इसलिए रक्त को अपन किडनी फेल्योर में भी बहुत सा ये करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और जो बल वर्ण है उसके ऊपर भी अपने को रक्त की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर वर्ण भी चेंज होगा तो समझने का रक्त की कोई तो भी दुष्टि है। इसलिए ये जो 2 श्लोक है ना वो सबसे फेवरेट है। और जो यानी कि चरक का जो नेम है ना वो बहुत ही अच्छा नेम है, विधि शोणित अध्याय। यानी कि शोणित जो है ना अपने शरीर के अंदर विधि के अनुसार बन रहा है, इसलिए खाने पीने की टाइमिंग भी उन्होंने फिक्स ही रखे है। अपन कभी भी चेंज हो गए अगर खाने पीने में तो फिर व्याधि होते हैं, क्योंकि रक्त जो है वो विधि के साथ बन रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि विधि शून्यत अध्याय। थैंक यू। थैंक यू स्वप्निल, आपने बता दिया कि जहाँ चाह होती है वहां राह अपने आप निकल ही आती है। इतने सारे डिफिकल्टीज के बाद भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो पाए, थैंक यू सो मच। Here we come to the end of this program, a participant list. There is no such thing called real ending. It's just the place where you stop the story. So, यहाँ हम अंत की तरफ आ गए हैं हमारी पार्टिसिपेंट लिस्ट की। तो पहले तो हम जो मोस्ट अवेटेड मोमेंट है हम उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। That is the result of a slot 1 चरक जीनियस चैलेंज। उसके लिए मैं कहना चाहूंगी पहले तो कि जो लोग नहीं जीत पाए हैं उनको ये सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि
ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते। ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। तो आपने मैदान नहीं छोड़ा, तो in our eyes you are already winners for us. It's just a matter of fact that some are very good, some are there, some are not, but still you had that courage to come between us and speak on this platform is a very bigger deal. So thank you for making us proud of you. Thank you so much. So the results are here. First position is backed by Arun Sanghanesh from NK Japshetty Ayurved Medical College and PG Center. Congratulations, Arun Sanghanesh. We are really hearted to give you this prize. Second position is backed by Rukmini Deshmukh from Bhav Saheb Molak Ayurveda College, Nagpur. Congratulations, Rukmini, for getting on this award. Thank you so much, ma'am. Third position is backed by Pranali Sunil Jadhav from Bharati Vidyapeeth College of Ayurveda, Pune. Congratulations, Pranali. It was lovely to hear you out there. Special prize is won by Minaj Ahmed, doctor from Dr. BRKR Government Ayurveda Medical College, Hyderabad. Congratulations, Minaj. Thank you so much, ma'am. We are really delighted to listen to all of you. Now, I would like to call a distinguished guest, Ved Ankesh Kumar Mishra, to share his experience with us. नमस्ते सर, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। अपने आज के इस तरह के जो प्रयोग सबने किए, इसके लिए इस पूरी टीम को सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि देखने में आता है कि जो चीजें विस्मृत हो जाती हैं अथवा जिन विषयों पे हम ध्यान नहीं देते, वैसे विषयों पे भी ये बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं काफी मेहनत करके इन्होंने और उन विषयों पे भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। इसके लिए उन सभी को एक बार पुनः आभार। जैसा अपने सभी पार्टिसिपेंट्स ने किया, काफी अच्छा किया। बहुत में कुछ बहुतों ने अपने अध्ययन के बल पर श्लोक पे भी अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखी है और उसको कैसे डिफाइन करना है इस पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखी। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने श्लोक तो बहुत अच्छे बोले, किंतु उसको कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं उसमें थोड़ी उनको सुधार की आवश्यकता मुझे दिख रही है। किंतु कुछ ने ऐसे भी थे, श्लोक भले ही उन्होंने बहुत अधिक महत्व का नहीं लिया, किंतु उनके प्रस्तुतिकरण इतने अच्छे थे। इन सभी को देख के हम सभी को भी सीखने का ऐसा एक मौका मिला और मुझे रिजल्ट तो अभी हमें बाद में देना है। यस सर, रिजल्ट नेक्स्ट प्रोग्राम में डिक्लेयर किया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत पुनः एक बार आप सभी का आभार। धन्यवाद। थैंक यू अंकेश सर, आपको अपने बीच में पाकर हमें बहुत 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 खुशी हो रही है। और मैं आपने जो सजेशन दिया उसके लिए मैं बस बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की खासियत है कि वो कभी हारती नहीं। तो हमारे बच्चे भी हारेंगे नहीं और वो अपने आप में बेटरमेंट और बेटर से बेटर और बेटर से बेस्ट बनते ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, वी विल श्योरली कंसिडर इट। Up next, उज्जवल भविष्य की कामनाएं। Thank you so much, sir. Up next, I would like to call Ved Pankaj Kumar Singh, who is present here with us, to share his experience with us. Sir? Sir, unmute हो जाइए और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। Yes, sir, you are audible to us.
नमस्कार सर, आपका थैंक यू सो मच फॉर being there with us at the panel. मुझे भी अपार खुशी हो रही है, मैं बैडमिंटन के में आज जुड़ा हूँ, वो भी आप लोगों ने मुझे जजेस का अवसर दिया। तो यहाँ के बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा होता है, मतलब चूज तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाते। ऐसी दोनों चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, तब भी कोई बात नहीं। बहुत से अभी तो रिजल्ट आने बाद पता चलेगा कि इन बच्चों का ज्यादा बेटर रहा, और मैं इन बच्चों की उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। और साथ ही बच्चों को बताना चाहता हूँ कि हमेशा हर एक चीज जो भी चीजें हमारे इसमें प्रेजेंट टाइम में हो रही है, हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी हमारे कॉम्पिटिशन है, कुछ वगैरह है, उसमें पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन करना ही एक बात की पहली सीढ़ी जीती है हमारी। क्योंकि जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भी चीज में, तो हम दुनिया होने की सीढ़ी खो देंगे, उसका महत्व ही खो देंगे। यानी कि हर एक कार्यक्रमों में पहले पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जीत अपने आप निश्चित हो जाएगी जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज सर, हमारे बीच में प्रेजेंट रहने के लिए। और दुनिया हमें लाख बार कहती रहेगी कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, पर हमारा दिल हमें जरूर एक बार कहता है कि आप जरूर कर सकते हैं। और बच्चे जितने भी थे यहाँ पे, सबने यही ट्राई किया और सभी ने यही कोशिश की। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे बीच में प्रेजेंट रहे, आपने जज किया और अपने ऑरा से हमको खुश किया। थैंक यू सो मच सर। Up next, I would like to call Dr. Prafulla, who is here with us as the Lady Power. Ma'am, if I'm audible to you, turn on your mic. Dr. Prafulla, ma'am. First of all, I would like to thank the whole team of Vaidya Mitra for providing me this opportunity as a judgment of this particular recitation program. It is pleasure to listen the budding Ayurveda scholars about Acharya Charaka recitation program. I should say that all the participants recited the verse very well and understand the concept thoroughly. Everyone tried sincerely, then definitely Ayurveda reached milestone higher and higher. We tried sincerely give the scoring. Once again, there is no loser and winner, all are winners only. Lastly, I would like to congratulate the whole team of Vaidya Mitram conducting such a nice program timely, providing platform for Ayurveda scholars. Thank you everyone. मैम आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारे बीच में उपस्थित रहने के लिए। और मैम चरक के ऊपर तो बस यही कहा जा सकता है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है, उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है। सो अगर हमारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं तो दैट्स मोर देन गुड और इनफ। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग प्रेजेंट विद हर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर अंजना द्विवेदी मैम। डॉक्टर अंजना द्विवेदी मैम, मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके मैम। मैम नमस्कार, आपका प्रोग्राम है बहुत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। Am I audible now? Yes मैम, यू आर ऑडिबल। Thank you. तो आज का इवेंट जो आधारित था चरक संहिता, उसके बारे में दो शब्द कहना। अपने आयुर्वेद वांग्मय की जो परंपरा है बहुत ही विशिष्ट है। जब हम वांग्मय की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में बृहत्त्रयी सबसे पहले आती है, जिसमें 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें से पहला ये अपना चरक संहिता है। और चरक संहिता वस्तुतः एक क्रमिक श्रृंखला है कार्यों की। वो कैसे? जैसे कहा कि पुनर्वसु आत्रेय ने उपदेश दिया, जिसको अग्निवेश ने, जो उनके शिष्य थे, उसको ग्रंथ रूप में निबद्ध किया। फिर आचार्य चरक ने उसका प्रति संस्कार किया और द्रोणवल ने जो भाग उससे छूटे थे उनको पूरा किया। इस तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से ये चरक संहिता ग्रंथ हमारे सामने आया। अब पुनर्वसु आत्रेय क्या थे? वो बेसिकली यायावर ऋषि थे और उनका जो प्रधान कार्य क्षेत्र था वो नॉर्थ इंडिया था।
तो नॉर्थ इंडियन प्लेसेस में वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जाते थे, वहाँ के सामाजिक जन सामान्य लोगों में जो रोग देखते थे या जो भी परेशानी या जो भी वातावरण की स्थिति देखते थे, उसका प्रायोगिक ज्ञान अपने शिष्यों को देते थे। उपनिषदों की ये विशिष्ट शैली है कि वहाँ पर शिष्य अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, क्वेश्चन करता है अपने गुरु से, और गुरु उसका समाधान प्रस्तुत करता है, और वो गुरु अपने शिष्य को पूरा संतुष्ट भी करता है। और वास्तव में शिक्षण पद्धति की ये सर्वोत्तम प्रणाली भी है, जिस पर अपना ये चरक संहिता ग्रंथ आधारित है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में चरक संहिता अपने आप में संपूर्ण है। फिर दूसरी बात आती है, आयुर्वेद का ज्ञान जब ब्रह्मा जी से मिला तो वो त्रिसूत्र के रूप में प्रोपेगेट हुआ। तो ये चरक संहिता त्रिसूत्र पर ही आधारित है, हेतु, लिंग और औषध। और इसकी विषय वस्तु इतनी व्यवहारिक है कि अगर हम ये कहें कि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में चरक संहिता अग्रणी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हमको कोई भी आयुर्वेद का विषय देखना होता है तो हम संदर्भ ग्रंथ के रूप में सबसे पहले चरक संहिता ही रिफर करते हैं। तो जितना इसकी विषय वस्तु संपूर्ण रूप से व्यक्त की गई है, बस जरूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में उसके मायनों को निकालने की और उस रूप में उसको समझे जाने की। जिस समय चरक संहिता लिखी गई उस समय उसकी उपादेयता निश्चित रूप से थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। एक वैज्ञानिक तो यहाँ तक कह गए हैं कि अगर दुनिया के समस्त चिकित्सा साहित्य को नष्ट कर दिया जाए तो एकमात्र चरक संहिता ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व को आरोग्य प्रदान करने में समर्थ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रंथ इतने अद्भुत और चमत्कारिक ज्ञान का भंडार है कि हम इसको जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमारे ज्ञान में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती जाती है। दोबारा पढ़ने पर ये नहीं लगता है कि हम केवल उसका रिपीटिशन कर रहे हैं। अगर आप उसका एक श्लोक आज पढ़ें और वही श्लोक दोबारा से कल पढ़ें, फिर आने वाले कल में पढ़ें, तो निश्चित रूप से उस श्लोक के अर्थ में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हमको महसूस होती है। और ये प्रतियोगिता भी आज इसीलिए हुई है कि कौन सा स्टूडेंट किस श्लोक के प्रति क्यों आकृष्ट हुआ, उसको क्यों वो अपीलिंग लगा, और उसने उसको कैसे जाना, कैसे समझा और किस तरह से एक्सप्लेन किया। क्योंकि हर व्यक्ति का एक्सप्लेन करने का, सोचने का, समझने का, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग और नियत होती है। जिस चीज़ को उसने जिस अर्थ में पेश किया, हो सकता है पहले हमने उस अर्थ में उसको नहीं लिया हो। तो हर स्टूडेंट ने कायदे से ये भी बताया कि उसको वो चीज़ स्पेशली क्यों अच्छी लगी और उसने किस अर्थ में उसको सूटेबल पाया। तो जब रिजल्ट आएगा इस प्रतियोगिता का तो पता चलेगा कि कौन फर्स्ट है, सेकंड है। वास्तव में हम लोग इस माध्यम से, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से चरक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जितनी बार इसको देखेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नयापन हमको मिलेगा। तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं और थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमको आज ये अवसर दिया इस इवेंट में शामिल होने के लिए। और कोई भी इवेंट रातों रात सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके लिए बहुत महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो आप लोगों के प्रयास को और हार्ड वर्क को मैं अप्रिशिएट करती हूँ और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी धन्यवाद देती हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। सक्सेसफुल हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने विचार इतने अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किए, वो अपीलिंग है। और उनकी आगे की लाइफ के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। अंजनी। थैंक यू सो मच अंजना मैम, थैंक यू सो मच। आपका हर एक वर्ड हमें पूरे टाइम तक याद रहेगा, हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और आपका जो भी नॉलेज था आपने मतलब शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। So thank you for being with us on the panel, ma'am.
अब हम उनको याद करेंगे जो एक्चुअली में जिनकी वजह से ये प्रोग्राम, ये वैद्य मित्रम आज हमारे बीच में है। तो लेट्स कॉल अपॉन मिस्टर APS चौहान सर फॉर अ वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू मुस्कान, आपको थैंक यू सो मच सर। हाँ, बहुत सुंदर एंकरिंग की आपने आज प्रोग्राम की, और बहुत अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंटली और बहुत व्यवस्थित एंकरिंग रही। बहुत बधाई आपको सर, सब आपकी वजह से है। थैंक सबसे यू। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर अंजना जी का। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से चरक संहिता को पढ़ने के पीछे जो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए बच्चे के दिमाग में, वो उसको बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे सामने रखा। बहुत जो महत्वपूर्ण बिंदु, जो महत्वपूर्ण बातें जो चरक संहिता पढ़ने के पहले बच्चे को मालूम होना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। उनका बहुत धन्यवाद। और बाकी जो हमारे साथ वो लंबे समय से जुड़ी हुई है, लेकिन आज एज ए चेयरपर्सन हमारे बीच में रही, हमारे बच्चों को उन्होंने मार्गदर्शन किया, पूरे वैद्य मित्रम परिवार की ओर से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका निभाई। और साथ ही उनके डॉक्टर प्रफुल्ला जो भोपाल वीणा वादनी आयुर्वेदिक कॉलेज से, और साथ में डॉक्टर अंकेश मिश्रा जो कि सीवान से हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से इस प्रतियोगिता में पूरा समय देते हुए निर्णायक के रूप में हमारे बीच में मौजूद रहे। और पूरे कार्यक्रम को इस सफल बनाने के पीछे आप सभी महानुभावों का बहुत योगदान रहा। मैं पूरे परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मुस्कान जो कि हमारी सेकेंड ईयर की छात्रा है, उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया। और जो बच्चे जैसे अंजनी मिश्रा और साथ ही जो दूसरे बच्चे जिन्होंने इसको प्रोग्राम को प्रेजेंट करने में जो स्लाइड्स फॉर्मेशन किया, जो प्रेजेंटेशन किया, कोऑर्डिनेशन किया, और इन सब की जो हमारी लीडर हैं प्रतिभा पांडे, जिन्होंने इनको मार्गदर्शन देकर के इस योग्य उन्होंने बनाया कि वो आज इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सके। आप सभी का मैं पूरे हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, हम सभी को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। अप नेक्स्ट, जिनके बिना शायद से जो भले हमारे रूटीन में ना हो, वो भले हमारे स्क्रिप्ट में ना हो, पर उनके वर्ड्स के बिना तो ये प्रोग्राम एंड हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर बबीता शर्मा मैम, यू हैव टू से फ्यू वर्ड्स टू अस मैम। थैंक यू मुस्कान। आज आप Thank you so much, ma'am. आज आपने बहुत ही बिंदास और बहुत ही सलीके से प्रोग्राम को कंडक्ट किया। मजा आ गया आज आपको सुनते हुए। और सारे विनर्स को बहुत धन्यवाद जो और बधाई। जो पिछले स्लॉट के यानी 5 सितंबर के जो प्रोग्राम में जो विनर्स थे, उन सभी को भी मेरा बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ में और जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जैसा कि सारे हमारे जजेस और जितने भी सीनियर्स है, सभी यही आपको समझाते हैं कि जीतना हारना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट किया तो आपको चरक पढ़ने को मिला। और जैसा कि डॉक्टर अंजना ने आपको बताया इतने अच्छे से कि चरक पढ़ना अपने आप में चरक के लिए ट्रिब्यूट देना है, उनको श्रद्धांजलि देना है। चरक पढ़ना समझना ये तो जीवन भर चलता रहेगा। हम लोग के साथ आज भी यही होता है। आज भी हम जब कभी उस को पढ़ते हैं तो हमें कोई नई बात, कोई नया अनुभव ही मिलता है। ऐसी अद्भुत है ये चरक संहिता। तो थैंक यू वेरी मच। आज के पार्टिसिपेंट्स भी बहुत बढ़िया, मतलब आप देखें इतने अच्छे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लेकर आए हैं। आवरण चिकित्सा मैं देख रही थी, उस पर बात हो रही थी। जो हमारे यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट बच्चे इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतने अच्छे टॉपिक्स वो लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा सबका रहा। और मैं इसमें 2 लोगों को इंट्रोड्यूस और करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथी जजेस के रूप में हमारे साथ हैं या चीफ गेस्ट के रूप में हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स को भी मैं सामने लेकर आऊं।
जो एक्चुअली बहुत मेहनत करते हैं। और जैसा कि आप लोग इस प्रोग्राम को मैंने देखा है, बाद में भी मेरे फ्रेंड्स जो भी इसको अटेंड करते हैं बहुत तारीफ करते हैं और स्मूथ कंडक्शन की बात कहते हैं कि बहुत स्मूथली कंडक्ट होता है और बहुत प्रेजेंटेबल प्रोग्राम होता है आपका, और अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं उन सबको यही बताऊंगी कि एक्चुअली ये सब केवल एकेडमिक एक्सीलेंट करने के लिए या बच्चों में एकेडमिक्स अच्छे हों, ये तो प्रयास हमारा रहता ही है। दूसरा प्रयास हमारा रहता है कि इनकी पर्सनालिटी ग्रूम हो, ओवरऑल उनमें डेवलपमेंट हो, वो प्रेजेंटेबल बने। इसके अलावा बैक ऑफ द स्टेज के प्रोग्राम्स, यानी उन्हें समझ में आना चाहिए कि आगे जाकर प्रोग्राम्स कंडक्ट करना और प्रोग्राम्स में अपनी सहभागिता कैसे देना है, बैक ऑफ द स्टेज रह के प्रोग्राम को अच्छा कैसे बनाना है, ये सब भी आना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि आज का जो प्रेजेंट टाइम है वो एक्चुअली जो प्रेजेंटेबल है वही चलता है मार्केट में, आप सब देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। एक चीज मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, आज भी कहूंगी कि चूंकि ये जो समय चल रहा है इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ रहा है और बढ़ेगा ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पोजीशन है इस समय की, करंट सिचुएशन है, वो बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली, लंबे समय तक ऐसा चलेगा। और हमने ऑनलाइन प्रोग्राम का बहुत फायदा भी इसीलिए उठाया हुआ है कि मतलब ये वाकई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें लगा है। और आपको बड़ी जानकर खुशी होगी कि हमारे साथ जो भी ये जजेस हैं, वैद्य अंकेश मिश्रा जी हो या पंकज सिंह जी हो या मैडम हो या अंजना मैडम हो, ये सभी ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जजेस के रूप में इनका आना भी हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखा के जाता है। और हमारे बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप जो ये प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, जैसे अभी मैं देख रही थी एक ऑन रोड थे वो, और वहां से ऑनलाइन आ रहे थे और एडमिट हो रहे थे, मैं आप सभी से कहूंगी कि इन सब चीजों को सिंसियरली लीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बट यूज इट जैसे आप ऑफलाइन प्रोग्राम में करते हैं कि क्लास का टाइम है तो वहाँ बैठे हुए हैं, कॉलेज का टाइम है तो वहाँ टाइमली जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। नेट कनेक्टिविटी भी बनाना ये आपकी अभी की, जो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये नेट कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर है, आपके पास प्रॉपर गजेट है, आपके पास लैपटॉप है, ये सब चीजें मेक श्योर इसको बनाइए, क्योंकि ये आज की जरूरत है ना। अभी हम बार बार मैं ये बोलती हूँ, अभी हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो कई चीजों का एक्सपेंडिचर हमारा बचा हुआ है, हम रूम्स में हॉस्टल में रहते हैं, हम गाड़ियां चलाते हैं, ये सब चीजें अब हम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बदले आप अपने पास एक अच्छा सा लैपटॉप रखें, अच्छी नेट कनेक्टिविटी रखें घर में। अपने पेरेंट्स से बोलेंगे तो वो कभी मना नहीं करते। यदि आप पेरेंट्स से कहें कि हमारी पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो कोई भी मुझे लगता है मना नहीं करेगा आपको, लेकिन आप बोलें तो। कई बार क्या होता है, आप मोबाइल से एंटर होते हैं, बड़ा अजीब लगता है, कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, वीडियो ऑन हो रहा है, ओरिएंटेशन आपका ठीक है कि नहीं प्रॉपर, ये सब चीजें बड़ी मायने रखती है। जैसा कि अभी आपने जजमेंट में देखा कि प्रेजेंटेबल होने के भी 5 मार्क्स थे, 5 मार्क्स राइटिंग स्किल के थे। तो अपने को अच्छा बनाने के लिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कौन करेगा, कौन डिमांड करेगा। ये भी नहीं है कि बहुत महंगा और बहुत ही मतलब लेटेस्ट आपको कोई गजेट चाहिए, नॉर्मल चीजों से भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अंजना, जो हमारी बहुत अच्छी मित्र भी हैं, और इतना अच्छा उन्होंने चरक का एक, कहना चाहिए ना, ओवरव्यू आपको दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी अपग्रेड हुई। और हमारे डॉक्टर प्रफुल्ला जो कर्नाटका से हमारे साथ जुड़ी हैं, वो अपने नेटिव प्लेस पर गई थी लेकिन हमारे स्नेह आमंत्रण पर आज हमारे साथ है। वैद्य पंकज सिंह जी बहुत सक्रिय हैं, आप देखिएगा उनके भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हमको ऑनलाइन भी अभी आजकल चल रहे हैं, वो हम देखते हैं, जुड़ते हैं उनसे। अंकेश जी को भी मैं देखती हूँ, विश्व आयुर्वेद परिषद से जुड़े हुए हैं, बिहार के प्रांत संपर्क प्रमुख हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम वो करते हैं, ज्ञानवर्धक। इसीलिए मेरा एक उद्देश्य यही रहता है कि 2 अच्छे लोगों को, स्टूडेंट्स और जजेस, दोनों को साथ में लेकर आऊं और आपस में एक दूसरे से ये लोग कुछ प्रेरणा लेकर जाएं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और अब मुस्कान, मैं कहूंगी कि एक अच्छा सा फोटो हो जाए, सभी लोगों से कहिए स्क्रीन शेयर बंद करें प्लीज। मैम 1 सेकेंड मैम, मेरे को एंड करना है प्रोग्राम, तो मैं एंड कर दूं प्लीज। ओके माइक इज ओवर। ओके, थैंक यू सो मच बबीता मैम, ऑलवेज एज इंस्पायरिंग एज यू आर। To be inspired is great, but to be inspirational is honor, and you are inspirational to the youth. Thank you so much, ma'am. Without the connecting link, I don't feel like कि यार अगर हमारे जो connecting link नहीं है,
जो हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, उनके बिना ये प्रोग्राम इतना स्मूथली हो सकता था। हर स्टेप, हर मोमेंट पे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो एक बार मैं चाहूंगी कि वो आके अपने दो मतलब सिर्फ अपना व्यू शेयर करें फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने भी ये सब पर्दे के पीछे का जो काम है सिर्फ उन्हीं का ही है। सो एक बार अंजनी को मैं बुलाना चाहूंगी, अंजनी मिश्रा। अंजनी, आर यू देयर विद अस? हेलो। यस अंजनी, शेयर योर एक्सपीरियंस, Hello? क्योंकि तुम्हारे बिना ये प्रोग्राम थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो था। यस अंजनी, सुनाई दे रहा है बेटा, बोलिए। Yes, thank you, ma'am. First of all, good evening to all dignitaries present over here. I want to say some lines I want to dedicate some lines to Dr. Babita ma'am, Dr. APS Chauhan sir, and वैद्य पंकज सर एंड ऑल अदर डिग्निटरीज। गुरु तेरी महिमा का वर्णन करूं मैं कैसे, गुरु तेरी महिमा का वर्णन करूं मैं कैसे, वर्णन लिखूं तो कागज छोटा पड़ जाता है। बहुत थैंक यू, Thank you so much. Dr. Babita ma'am, Dr. APS Chauhan sir, and all the Vedamitam team. अंजनी, योर कनेक्टिविटी इज लाइक थोड़ा पुअर है, तो हम आपको बाद में कनेक्ट करेंगे। इन मीनवाइल टाइम हम शुभम को बोलेंगे, प्लीज शुभम कम विद अस। शुभम भरद्वाज, ही इज द अनदर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। सारे सर्टिफिकेट्स, सारी स्लाइड्स सब उसी का ही बनाया हुआ है। सो थैंक यू सो मच शुभम। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम तालियां नहीं बजा सकते, क्लैप्स नहीं कर सकते, बट इट इज लाइक शुभम, आर यू देयर विद अस? I'm very glad to have you in our family. Thank you, ma'am. Thank you so much, Shubham. Now, I would end up the program by saying things. They just mean that something else is about to begin. And then there are many things that don't really end. Anyways, they just begin again in a new way. Ends are not bad, and many ends aren't really an ending. Some things are never ending. Similarly to our Vedamitram programs, they are never ending. So don't forget to subscribe and like all the performances which are done and are all the feedings which are put over there. Do like and subscribe our Vedamitram e-learning platform channel. Thank you so much. Thank you so much to all our dignitaries, our chief